Good morning, 11th class. So in today's video, I will revise you exercise 10.2 and 10.3. It's a revision as already we have done both the exercises. So the questions which we have done already 2-3 times or which are very easy one, I will not tell you everything in detail as unnecessary. बहुत ज़्यादा repeat करना is not good. So question number 1, you have to find the equation of y-axis and x-axis. Equation of x-axis is y is equal to 0. Why y is equal to 0? Because every point on x-axis has the coordinate y is equal to 0. And every point on y-axis, the coordinate, आप कह सकते हो the y coordinate of every point on x-axis is 0. And the x coordinate of every point on y-axis is 0. Therefore, the equation of x-axis is y is equal to 0 and equation of y-axis is x is equal to 0. Simple one. Next question पे आ जाते हैं. Second question. Here you have the point slope form. You have given one point, you can see, and slope. One point and slope. यहाँ पे हम use करेंगे point slope form. Point slope form क्या है? y minus y1 when you have given one point and the slope of a line, तो आप use करते हैं point slope form, which is y minus y1 is equal to slope x minus x1. Here y1 is equal to 3 and x1 is minus 4. So y minus 3 is equal to slope is 1/2, x minus x1 minus minus plus हो जाएगा. आप इसको solve करेंगे, ठीक है. सॉल्व कर लेना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऑरली भी आप कर सकते हो, बहुत सिंपल सही है. अगर आप इसको करते हो 2y(x), तो ये आ जाता है x minus 2y plus 10 is equal to 0. So this is the equation of the required line passing through the point minus 4, 3 and slope 1/2. Now next question, question number 3. Again the same question in which the point is 0, 0, तो question और भी easy हो जाता है. तो यहाँ पे हो जाता है y minus 0 is equal to slope x minus 0. So the required equation becomes y is equal to mx. ठीक है जी. Next question पे आ जाते हैं. Now again you have point given. This is also the point slope form. Slope is also given because slope is the tangent of angle tan theta. जो हमारे रिक्वायर्ड लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, उसके साथ tan ले लेते हैं तो वो हमारा स्लोप हो जाता है. स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस. ये हमें दे रखा है 75, यानी कि यहाँ पे जो हमारा m हो जाएगा वो हो जाएगा tan 75. इसको आप ब्रेक करेंगे 45 + 30, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं होती टेबल में, और 90 से बड़ा एंगल भी नहीं है जो 90 में ब्रेक करेंगे. अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan a + b का, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ये हम यूज करेंगे. ठीक है जी. अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर लेना, ये आपका काम है. आप इसको पुट करना. tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. ये पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 + √3. ऑलरेडी 3 बार करा चुकी हूँ, तो ये आप प्लीज सॉल्व कर लेना. नहीं आएगा तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर. देन योर इक्वेशन इज y minus y1 is equal to slope x minus x1, where x1 is 2√3. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफाई कर लो. 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर √3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, वहां पे भी हो जाएगा y minus 2. सॉरी, मैंने यहाँ पे पूरा नहीं बताया आपको. पहले 2 को x से करोगे, फिर 2 को इससे करोगे, फिर √3 को x से करोगे, और फिर √3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे. तो आपको मिलेगा 2x प्लस, पहले माइनस कर लेते हैं, 2 2 = 4√3, फिर प्लस √3x एंड माइनस 2√3 × √3 6. ठीक है जी, ये हो गया हमारा. अब यहाँ से और यहाँ से आप x को कॉमन ले लो.
अंदर बचेगा 2 प्लस रूट 3, y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, -6 + 2 इज -4। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस ये वाला काम खुद करना है आपने पूरा सॉल्व करके, बाकी मैंने सारा सॉल्व करा दिया आपको। जहाँ पे फास्ट लगता है वहां पे पोज करके आप आराम से देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is intersecting. You have to find the equation of a line intersecting x-axis at a distance of 3 unit. इसका मतलब क्या है? Intersecting x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope as -2. Slope is given, but उसके साथ हमें ये दिया हुआ है x एक्सिस पे लाइन जहां पे कट करती है वो होता है हमारा x इंटरसेक्ट, ये होता है y एक्सिस, सॉरी टेढ़ा हो गया। सो दिस इज योर y एक्सिस, x एक्सिस, और वो लेफ्ट में कट करी है तो ये लेफ्ट बना दिया मैंने, ये 3 यूनिट हो गया। तो इसका मतलब जो हमारा x इंटरसेप्ट है वो -3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -3, और यहाँ पे हम यूज करेंगे x इंटरसेप्ट फॉर्म। फॉर्म क्या है, अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालूं तो ये हो जाएगा -3, 0। और हमारी अगर इसमें हम 1 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, सिंपल y वाली, तो हम ये यूज कर सकते हैं y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। ये भी आपको सेम आंसर देगी। अगर आप इससे करते हो तो क्या आएगा, 2x + y + 6। या फिर आप यूज कर सकते हो इसमें y इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इज इक्वल टू mx - d, where d is the x intercept which is -3. So y is equal to -2x + 3। आप देख रहे हो बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, तो इससे भी आपको सेम इक्वेशन मिलेगी। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इंटरसेक्टिंग y एक्सिस, सेम क्वेश्चन है, इसमें x एक्सिस की जगह पे y एक्सिस पे लाइन कट कर रही है। सो यू हैव गिवन द y इंटरसेप्ट, और यहाँ पे हमारा अबव है तो पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला बता देती हूँ क्या यूज करना है। यहाँ पे आप यूज करोगे y इज इक्वल टू mx + c। y इज y, m इज इक्वल टू कितना है, tan 30, एंड tan 30 इज 1/√3 x + 2। सॉल्व कर देना, ये हमारा आंसर है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं जी। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म से करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, आपको स्लोप नहीं दिया होता तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। आप इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है y - y1। तो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप होता है मेरा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और x - x1, माइनस माइनस प्लस। सो -4 - 1 क्या हो जाएगा जी, -5, और नीचे हो जाएगा 3। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 3y - 3, और -5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5x - 5। सो फाइनली हमारी इक्वेशन आ जाएगी 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0। 0 लिखा है मैंने। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते हो। फास्ट हो रहा है क्योंकि आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है, रिवीजन हो रही है ये। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है, और एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, नॉट बाय द रिक्वायर्ड लाइन। एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। सो द सिचुएशन इज लाइक दिस लाइन इक्वेशन यू हैव टू फाइंड। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये है नॉर्मल परपेंडिकुलर जिसके डिस्टेंस है 5 यूनिट, और ये नॉर्मल जो है वो एंगल बना रहा है 30। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो P है वो हमें 5 गिवन है। P हमें 5 गिवन है, और जो हमारा W है, जो एंगल हमारा होता है, कई लोग इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। और हमारा जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो होती है x cos W + y sin W इज इक्वल टू P। वैल्यूज पुट कर दो, cos 30 is √3/2, sin 30 is 1/2,
ठीक है जी, और p की वैल्यू कितनी दी हुई है? सॉल्व करो, इसका एलसीएम लो, 2 जो नीचे वाला है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो यू विल गेट √3x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। Vertices of triangle PQR are given. You have to find the equation of the median. Again, a easy one. मीडियन की इक्वेशन के लिए आपको अगर दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो आप आराम से मीडियन निकाल सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हो। सो यहाँ पे ये है मेरा ट्राइंगल PQR, उसने लिखा है मीडियन थ्रू वर्टेक्स R, तो यहाँ से आपको लेनी है मीडियन, ये मिड पॉइंट लिया और इसको आपने R से ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज PR 21 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR -2, 3। 2 - 2 को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 0/2 0, 3 + 1 4/2 2। ये आ गए मिड पॉइंट, और यहाँ पे R के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 5, 4 और 5। अब आपको यहाँ पे इनकी इक्वेशन निकालनी है SR की, मीडियन यहाँ पर SR है, तो इक्वेशन ऑफ SR, मैंने किसी भी क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन पे कुछ भी आपको ज्यादा नहीं बताया, तो आप प्रेजेंटेशन पे पूरा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप नॉर्मल रफली सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन हमारा सब्जेक्टिव है तो आपको उसको डिटेल में पूरा लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपकी इक्वेशन आ जाएगी y - y1 विच इज, अगर मैं इसको x1 ले रही हूँ और इसको y1 ले रही हूँ, तो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप विच इज 5 - 2/4 - 0 इंटू x - x1, एंड x1 कितना है इसमें? 0 है। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y - 2 इज इक्वल टू 3/4x। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, मैं तो आपको डायरेक्ट आंसर लिख के दे दूंगी, बट आप कर लेंगे इसको सॉल्व। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाएगा 3x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 9th के बाद आते हैं जी 10th क्वेश्चन पे। Find the equation of a line passing through the point and perpendicular to the another line passing through the point 25 and 3 - 3,6। यहाँ पे आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो खुद तो पास कर रही है एक पॉइंट से, लेकिन वो परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के। जिस लाइन के परपेंडिकुलर है ना, इसका स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड लाइन है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है टू दिस लाइन, तो इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा m2 विच इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1। तो इससे मेरा रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ जाएगा, और पॉइंट पहले से ही दे रखा है मेरे को, यहाँ पे मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करूंगी। स्लोप कैसे निकालते हैं? 6 - 5 इज 1, -3 - 2 इज -5। तो ये आ गया m1, तो m2 कितना आ जाएगा मेरा? प्लस का 5, और पॉइंट है मेरे पास -3,5। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा सॉल्व करके? 5x माइनस y प्लस 20। ठीक है, मैं ओरली सॉल्व कर रही हूँ, आप इसको अपने आप करके देख लेना, कुछ मिस्टेक वगैरह हो तो भी देख लेना। अब इसको खुद ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, अगेन परपेंडिकुलर लाइन है, पिछले क्वेश्चन में भी परपेंडिकुलर थी, तो उसमें क्या था, जिसके परपेंडिकुलर थी ना वहां से हमने स्लोप निकाला था, लेकिन 1 पॉइंट गिवन था, पॉइंट भी गिवन नहीं है। देखो ध्यान समझो क्या है, क्वेश्चन को लिखने से ज्यादा, थ्योरी से ज्यादा उसको विजुअलाइज करने में ध्यान दो। एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच लगाओ जो आपको हर क्वेश्चन में हेल्प करेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। रट्टा मारने से बेटर है आप सिचुएशन को जो दे रहा है वो ड्रॉ करो, विजुअलाइज करो, अंडरस्टैंड करो, आप अपने आप क्वेश्चन को कर पाओगे बहुत आराम से। The perpendicular to the line segment this is, you have to find the equation which is मतलब a line which is perpendicular to this line।
तो जो लाइन परपेंडिकुलर है इसके साथ और इस रेशियो में डिवाइड कर रही है, देखो क्या कहना चाह रहा है, आपके पास ये 2 पॉइंट्स है 1,0, ठीक है, लाइन सेगमेंट है ये 2,3. You have to find the equation of a line which is perpendicular to this line. Perpendicular तो बहुत लाइन है इसके पास, यहाँ भी perpendicular, यहाँ भी, यहाँ भी. So perpendicular तो बहुत सारे लाइंस होंगे, लेकिन वो जो स्पेसिफिक लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो परपेंडिकुलर के साथ साथ 1:n के रेशियो में डिवाइड भी करती है. तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है जी. ये लाइन मैंने परपेंडिकुलर ले ली. अब ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, नंबर 1:n में डिवाइड करती है, नंबर 2, और ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है. तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे इसके एक तो पहले स्लोप निकालना पड़ेगा और एक पॉइंट निकालना पड़ेगा. फिर हम यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म. पॉइंट ये वाला है, मान लीजिए इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है. तो मुझे R पॉइंट निकालना है. R पॉइंट निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे. मान लेते हैं R की कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है जी. क्या हो जाएगा 1 × 2 n × 1 अपॉन 1 + n, 1. आंसर जो है वो n के टर्म में आएगा, परेशान नहीं होना, आंसर n की टर्म्स में ही आएगा. फिर 1 × 3 + n × 0 = 0 अपॉन 1 + n. ये मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए इस डिवाइडिंग पॉइंट के. और स्लोप पहले मैं निकालती हूँ स्लोप ऑफ PQ. पहले मैं निकालती हूँ स्लोप ऑफ PQ. PQ y2 - y1, so 3 - 0 upon x2 - x1, मतलब 2 - 1. So this is 3 upon 2 - 1 is 1. Therefore, slope of RS, the required line भी बोल सकते हैं, या फिर slope of a line perpendicular to the given line or perpendicular to the line passing through the point 1, 0 and 2, 3, कैसे भी आप लिख सकते हो, is -1/3. प्रॉपर इसका रीजन डाल के ढंग से लिखेंगे आप. नाउ इक्वेशन ऑफ RS, y - y1 which is 3 upon 1 + n is equal to slope x - x1. सॉल्व करना है भाई. इसको सॉल्व करने में परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 1 + n, वो दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा. बाकी आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे जो इन टर्म्स ऑफ n ही आएगा. बहुत आराम से निकल जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए. n की टर्म्स में आएगा बेटा, इसीलिए जो भी आएगा आंसर वो आपको वही आंसर आपका आ जाएगा n के टर्म्स में. 12th question, find the equation of a line that cuts off intercepts on the coordinate axis, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है और पास करती है पॉइंट से. तो ये एक और चीज आप सीख लो, जब भी कोई लाइन दोनों इंटरसेक्ट को कट करती है और यहाँ पे किसी पॉइंट से पास कर रही है तो हम क्या करते हैं, सुनो ध्यान से. इसके अंदर हमें पॉइंट्स नहीं पता, एक्स इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट पता नहीं है, तो लेकिन हमें उसने बात की है. अच्छा इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, इक्वल दिया हुआ है. इसके अंदर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है और उनका जो सम है वो कितना आ रहा है, सॉरी सम नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है उसके हिसाब से, तो मुझे कुछ इस तरह से बनाना चाहिए जिसमें दोनों इंटरसेप्ट इक्वल लगे हमें. अभी भी नहीं लगे, ठीक है. सो अगर ये भी ए है और ये भी ए है मान लीजिए, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 और यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 2,3. ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें इसका जो फॉर्म है वो है x/a + y/b. अब b भी a आ गया तो ये हमारा आंसर आ चुका है, बट हमें a तो पता नहीं है. तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट 2,3 lies on the line, therefore it will satisfy the equation.
therefore it will satisfy the equation. सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि आपको x की वैल्यू, x की जगह पे 2 लगाना है, y की जगह पे 3 लगाना है और इनको सॉल्व करना है. सो योर एलसीएम इज a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे a की 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा a, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3, तो हमारे पास आ गया a = 5. अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी x/5 y/5 = 1. आपको अगर ओरल करना हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. x + y कितना आ रहा है इसमें, 5 आ रहा है. x + y = 5 इसकी इक्वेशन है. एमसीक्यूज में आप ऐसे हिट एंड ट्राई करके देख सकते हो कौन सा पॉइंट, मान लो आपको इसकी लाइन पूछी हुई है, उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है. उन चारों ऑप्शन में आप x और y की वैल्यूज पुट करके देखेंगे, जो इक्वेशन उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी. ठीक है, थोड़ा सा वैसा भी करना. सॉरी, 1 मिनट. देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. 13 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. अच्छा, ये 12th का मैंने बता दिया आपको. 13th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है. इसमें इंटरसेप्ट है इसमें भी, लेकिन यहाँ पर इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है, उनका सम जो है वो 9 है. तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन जिस हमने भी किया था वैसा का वैसा आप करोगे. यहाँ पर आपने जो इंटरसेप्ट लेने हैं, ठीक है, थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, समझ में आना चाहिए. सम इज 9 - 8 और ये पॉइंट हो गया 2 2. अब यहाँ पे आप फिर से इस इक्वेशन के अंदर x और y की जगह पे 2 और 2 पुट करेंगे. ठीक है, = क्या था, 1. ठीक है, अब इसमें आप x और y की जगह पे 2 और 2 पुट करेंगे और सेम टू सेम सॉल्व करके ये निकल जाएगा. फिर उस a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है जी. एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 पे. क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव एक्सिस. तो यहाँ तक आपका एक पार्ट हो गया कि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है. एक सेकंड, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई है. हाँ जी, आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है और आपको एंगल दिया हुआ है. tan 2π/3 आप निकाल लेंगे, आपका एक काम हो जाएगा. उसके बाद ऑल्सो में काम नहीं आ जाता है. ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग y एक्सिस. ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पहले समझते हैं. पहले तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, पहले तो इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं. अच्छा, ड्रॉ करके एक बार देख भी लेते हैं. ये जो लाइन है, पहले तो 2π/3 कितना होता है वो बताओ मुझे. 2π/3, पाई इज 180, 180 का डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 3 मतलब 120. तो tan 120 निकालना है. tan 120 निकालने के लिए आप इसको लिखोगे tan 90 प्लस कर सकते हो, या फिर 180 - 60 कर सकते हो. ठीक है जी, 180 - 60. तो tan पाई - π/3 ये आप लिख सकते हो इसको, विच इज इक्वल टू tan π/3 एंड tan π/3 मतलब tan 60. tan 60 कितना होता है. अच्छा, 1 मिनट. पाई - π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, -tan 60 हो गया. तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास -√3. -√3 आ गई वैल्यू हमारे पास. ठीक है बच्चों, इसके बाद आप क्या करोगे. अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ, एक बात आज एक नया पॉइंट बता रही हूँ. जब भी हमारा स्लोप नेगेटिव आए तो समझ जाना कि हमारा जो थीटा है ना वो मोर देन 90 है. वापस सुनो, जो थीटा था आपको याद होगा, जो हमारा स्लोप का एंगल होता है वो 0 से लेकर पाई तक होता है, 0 से लेकर 180 तक होता है. अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो हमारा थीटा जो होगा 0 से 90 आएगा. अगर हमारा स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज tan 90 तक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसके बाद फिर नेगेटिव, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. इसका मतलब हमारा एंगल
लाइन जो है वो इस तरह की है, ठीक है, हमारी लाइन जो है वो इस तरह की है। जरूरी नहीं कि वो ओरिजिन से पास करेगी, 1 मिनट रुको, जरूरी नहीं है वो ओरिजिन से पास करेगी। मान लेते हैं वो लाइन इस तरह की है और ये वाला एंगल जो है ये है 120 2π/3। नाउ यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग y एक्सिस at a distance of 2 unit below the origin। तो this is your y axis। इसको कट करने वाली 2 यूनिट पे एक लाइन और है, 2 यूनिट पे इसको कट करने वाली एक लाइन और है, सॉरी जी पैरेलल बनानी है मुझे, इस तरह से कुछ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया बट आप इसको थोड़ा समझ जाना। तो ये 2 यूनिट है, ये जो पॉइंट है ऑन y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0। तो आपको इसकी भी इक्वेशन निकालनी है और इसकी भी इक्वेशन निकालनी है। दोनों का स्लोप इक्वल आएगा बिकॉज लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल आता है और स्लोप आ चुका मेरा -√3। इतना क्लियर हो गया। अब आपको पहली इक्वेशन का पॉइंट दिया हुआ है 0 2, दूसरी इक्वेशन का पॉइंट दिया हुआ है 0 - 2, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 2 और ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 0 - 2। अब सीधा आप इसमें क्या यूज करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। इसमें हो जाएगा y - 2 इज इक्वल टू -√3 x - 0 और इसमें हो जाएगा y -2 इज इक्वल टू -√3 x - 0। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। ये 14 का मैंने आपको यहाँ पे ये भी देख लो इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया आपको। 15th, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन meets it at -2,9, find the equation of the line। अच्छा क्या कह रहा है पहले बना लेते हैं। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस, origin, perpendicular from origin meets a line at -2। इस साइड होगी लाइन। थोड़ा ना अगर आप एग्जैक्ट बनाओगे ना बेटा तो आपको ही विजुअलाइज करने में आसानी हो जाएगी। x जो है वो -2 है और y जो है वो 9 है, तो कुछ इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। वो लाइन कुछ इस तरह की होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। -2,9, अच्छा नहीं रुक जाओ, x -2 है, y 9 है, यहाँ से पास कर दिया, इसी साइड पे होगी, इसी साइड पे होगी। थोड़ी सी मैं और बड़ी बना देती हूँ उसको दिखाने के लिए, ठीक है। ये हो गई हमारे पास लाइन। अब आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मीट्स दिस लाइन, ये जो पॉइंट है ये मान लेते हैं -2,9 और ये है 0 0, ओरिजिन है तो ये 0 0 है। 2 पॉइंट्स आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, इसका स्लोप भी निकाल सकते हो और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका स्लोप हो जाएगा। तो वेरी सिंपल वन, अगर ये है मेरी L1 और ये है मेरी लाइन L2, तो स्लोप ऑफ L1 मान लेते हैं M1 which is y1 - y2, 9 - 0 upon -2 - 0 that is 9 upon -2। इसका मतलब रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हो जाएगा 2/9। अब इसका स्लोप भी है और एक पॉइंट भी है, तो आप लिख लो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। सॉल्व कर दो, 9y - 81 इज इक्वल टू 2x + 4 comes out 2x - 9y और -81 यहाँ के +81 हो गया तो ये हो गया +85 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेना बेटा एक बार, मैं ऐसे ओरली कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस के अंदर, सॉल्विंग वाला काम आप देख लेना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा उस दिन लास्ट क्लास में रह गया था, इसके ऊपर और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। इसमें वो कहता है कि जो L है वो है, यहाँ पे मेरे को आपको एग्जांपल भी देना है। देखो किसी भी चीज का ना हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। आप कोई भी चीज देख सकते हो, आप कोई भी मेटल देख सकते हो, कॉपर देख सकते हो, गोल्ड देख सकते हो, इवन जो रबर्स होते हैं उनको हम मेल्ट करते हैं तो वो लेंथ उनकी बढ़ जाती है। जब नया रबर लाते हैं ना मार्केट से, काफी टाइट होता है, थोड़े दिन के बाद वो खुल जाता है क्योंकि वो गर्मी से ना, हीट से वो मेल्ट, मतलब हीट होने से ना, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी लेंथ बढ़ जाती है। हम चप्पल्स लाते हैं, शुरू शुरू में टाइट होती हैं फिर लूज हो जाती है क्योंकि जो जो हमारा जो लेदर यूज होता है
चप्पल्स के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर से थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि जो लेंथ है ना वो एक लीनियर फंक्शन है ऑफ इट सेल्सियस, मतलब सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर और लेंथ का आपस में एक लीनियर फंक्शन का एक रिलेशन है, एक उनकी इक्वेशन बनती है, फंक्शन भी बोल सकते हो, जिसमें अगर लेंथ को इंक्रीज किया जाए, सॉरी टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, आप यहाँ पे देखो आपका जो टेम्परेचर है अगर वो 20 डिग्री सेल्सियस है तो लेंथ हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे तो कम नहीं हो रहा क्या कुछ? टेम्परेचर बढ़ने से तो लेंथ बढ़ती है ना। हम्म। हाँ बढ़ तो रही है, सॉरी 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 125 है ना यहाँ पे, सॉरी 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 मुझे लगा 4 ही है। ठीक है जी, आपका टेम्परेचर था जब 20 डिग्री सेल्सियस तो लेंथ थी 124.942 सेंटीमीटर। जब टेम्परेचर हो गया 110 तो हमारी लेंथ हो गई 125.134। आपको इसमें बस ये डिसाइड करना है कि आपको किसको लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग और किसको वाई के लेना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं ले लेती हूँ इसमें एल जो है उसको अलोंग एक्स एक्सिस ले लेती हूँ मैं, और जो सी है उसको मैं ले लेती हूँ अलोंग वाई एक्सिस। ये आपको बस मेन डिसाइड करना है। तो इसीलिए आप जो एक्स के अलोंग लिया मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हमारे पास जो दो पॉइंट बनेंगे ना वो पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, जो दो पॉइंट्स बनेंगे उनमें से जो पॉइंट 1 होगा वो होगा 124.942 कॉमा 20, एंड जो सेकंड पॉइंट है वो है 125.134 कॉमा 110। अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, अब इसकी इक्वेशन निकाल लो। y माइनस वाई वन, तो y एक्सिस पे हमने c लिया तो c माइनस वाई वन मतलब दिस वन, ये है x1 ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो y माइनस वाई वन तो y माइनस 20 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस x1, x इज l माइनस 124.942। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे पूरा तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करना है बेटा, माइनस कर लेना इन दोनों को, इनका डिफरेंस आएगा 0.192, 0.192 इंटू सी माइनस 20 इज इक्वल टू 90 इंटू, ये सी लिखा है ये वाला और ये है एन, माइनस 124.942। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना और आप इसमें क्लियर हो जाएगा प्रॉपरली, वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक at the rupees of 14 per liter and 1220 liter milk each week at the rate of rupees 16 per liter। अच्छा जी, आपको इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए एक कॉम्बिनेशन मतलब देखते हुए इनका रिलेशन आपको एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और उस इक्वेशन को बनने के बाद फिर आपको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का आंसर देना है, वो तो आ ही जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले आपको इनका एक रिलेशन समझना है। क्या रिलेशन है, कह रहा है कि अगर वो 14 रुपीज का पर लीटर बेचता है तो वो कितना बेचता है, 980 लीटर। ठीक है, ओके, और अगर वो 16 रुपीज का पर लीटर बेचता है तब वो बेच पाता है 1220 लीटर। तो अगर मैं एक को एक्स एक को वाई मान लूं, अगर मैं इसको x1 और इसको y1 इसको x2 और y2, तो मैं इनका कॉम्बिनेशन तो बना सकती हूँ, लेकिन उनके बीच में रिलेशन बना सकती हूँ विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो आएगी माइनस करके आएगा यहाँ पे
y minus 980 is equal to 0, 10, 12 minus 8 हो गया 4, 240 और नीचे वाला 2 जो था वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मैंने 2y कर दिया, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट x माइनस 14। तो ये हो गया 2y और 980 का डबल कितना हो गया? ये हमने गलती कर दी ना, सीधा हम 2 को इससे काट देते, रुको ये ज्यादा इजी पड़ेगा। ये आपका जो आया वो 240 आया, ये 2 आया और ये x माइनस 14 आया। 2 से यहीं पे ही काट दो इसको 120, ये और भी इजी पड़ेगा। ठीक है, तो 120x हो गया। कुल मिला के इसको सॉल्व कर लेना, आराम से हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है हाउ मेनी लीटर। अब यहाँ पे लीटर था यहाँ पे, और यहाँ पे कोस्ट था, रुपीज था। अगर 17 रुपीज लीटर होता है, मतलब आपका जो x है ना वो आपको 17 दिया हुआ है और आपको y जो है वो निकालनी है। तो जब ये इक्वेशन बन जाएगी, तैयार हो जाएगी पूरी इक्वेशन, उस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, x की जगह पे 17 लगा देंगे। यहाँ पे लगा देखना एक बार, 17 माइनस 14 13, 3 इंटू 120 360 और 360 प्लस 980, 360 प्लस 980 कितना आएगा? ये आपका आ रहा है हाउ मेनी लीटर्स, कितना दूध उसने वो बेच सकता है। एंड दिस इज 1340 लीटर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। आ जाते हैं जी इसके आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पे, 18th। पी ए बी इज द मिड पॉइंट। कितने क्वेश्चन है इसमें जी? एक्सरसाइज में 19। ठीक है, 20 क्वेश्चन है इसमें। चलो जी फटाफट करते हैं, इस वीडियो में ये तीनों क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगी बेटा। 18th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आपको एक लाइन, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस मतलब ये है y एक्सिस, x एक्सिस, ये एक लाइन है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसके x y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0, सॉरी जी यहाँ पे 0, y आएगा। ए बी इसका मिड पॉइंट है, तो a, b इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स अपॉन 2 एंड y प्लस 0 अपॉन 2। तो यहाँ से मेरा x आ जाता है 2a और y आ जाता है मेरा 2b। तो मेरे को अब इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन जो होती है वो होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b। यहाँ पे ए बी मत यूज करो वरना सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे ए बी ऑलरेडी इसमें था, तो यहाँ पे हम कैपिटल ए और कैपिटल बी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट आता है, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट आता है। ठीक है जी, और अब सुनो एक बात ध्यान से, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू 2a आई है ना, ये वाली, और ये वाली वैल्यू y की जो है वो 2b आई है, इसका मतलब जो x इंटरसेप्ट है ये वाली, अभी ये x इंटरसेप्ट जो है ना वो 2a बन गया और y इंटरसेप्ट 2b। तो यहाँ पे आप 2a लगा दो, यहाँ पे 2b इज इक्वल टू 1। तो आपने जब इसका 2 कॉमन लिया, उसको आपने उधर ले गए तो वहां पे 2 हो गया, तो ये आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन। Using the concept of equation of a line proves that the 3 points are collinear. So collinear आपने बहुत तरह से प्रूव किया है, बट यहाँ पे आपको लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, मतलब स्लोप वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो या तो आप स्लोप वाला यूज कर सकते हो कि इसमें हर लाइन का मतलब 2 पॉइंट लेके आप स्लोप बनाएंगे तो वो सेम आएगा, या फिर एक बेस्ट वे है यूज करने का, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। एक कोलिनियरिटी की कंडीशन भी होती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं किसी भी 2 पॉइंट को लेके, किसी भी 2 पॉइंट को लेके आप एक इक्वेशन बना ले लाइन की, और तीसरा पॉइंट उस इक्वेशन के ऊपर पुट करके देखें। अगर थर्ड पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारे पास पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर। ठीक है, आई थिंक मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया, 18th के बाद 20 है, 19th नहीं है, बुक्स में पढ़ देती हूँ। 19th क्वेश्चन है, पॉइंट H, K divides a line segment between the axes in the ratio 1:2।
तो सिचुएशन ऐसी है, पुराने वाले क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया हुआ था इस लाइन का, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है ये h, k है, हमने इसको अच्छा नाम, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये डिवाइड कर रहा है रेशो 2:1 में। ठीक है जी, 2:1 में नहीं, 1:2 में दिया हुआ है, 1:2 में दिया हुआ है। एक्चुअली उसने लिखा नहीं हुआ कि किस साइड पे 1 है किस साइड पे 2 है, एक्सिस को लिखा हुआ है, डिवाइड कर रहा है। तो इसमें हम कोई भी रेशो ले सकते हैं, अल्टीमेट करना वही है। इसमें आंसर ना हमारा इन टर्म्स ऑफ एच एंड के आएगा, बिकॉज यहाँ पर कोई प्रॉपर स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया हुआ। यहाँ पे हमारे पास 0, y है, यहाँ पे x, 0 है, यहाँ पे हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। एक बार 2:1 से भी लगा लेना, एक बार 1:2 से भी लगा लेना, दोनों आंसर करेक्ट आएंगे इसके, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सा आपको एक्सेस के ऊपर 2 लेना है, कौन से एक्सेस पे 1 लेना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज है वो लिखी हुई है कि द point RH, K divides the line segment between the axes in the ratio 1:2। ठीक है, तो आप 1:2 कर लो बेशक से, मैंने एक्चुअली ड्रॉ यहाँ पे कर दिया ना इसीलिए, तो इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हो गया 2 × x प्लस 1 × 0 मतलब 0, ये प्लस भी हटा ही देते हैं, अपोन में 2 + 1 3, और अगर हम करते हैं 2 × 0 0, ओके ये 0 ही आ गया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया एच के। यहां से h की जगह पे आपको x और y निकालना है। ठीक है, एक मिनट रुको, 2, x k × z 1 × 2 × x 1 × 0, then 2 × 0, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा, नहीं एक मिनट रुको, 2 × 0 0 अपॉन कुछ, अच्छा सॉरी प्लस होता है बीच में, एक सेकेंड, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 × 0 0 प्लस 1 × y, यहाँ पे y तो आएगा ही, अपॉन में हो जाएगा 3, तो यहाँ से h आ गया मेरा 2x/3 और k आ गया मेरा y/3। अब यहाँ से आपको निकालना है x, 3h/2 और y = 3k ओनली, 3k। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई, मतलब हमारा x इंटरसेप्ट आ गया 3h/2 और y इंटरसेप्ट आ गया 3k। अब इसको पुट कर दो, यहाँ पे 3h/2 आ गया और यहाँ पे 3k आ गया और = 1, बस सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये हमारी होगी एक्सरसाइज 10.2। 10.3 मैं आपको नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट अलग से भेजूंगी, ये इतनी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है बच्चों, चलो, सो दैट्स ऑल अभी के लिए।